हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ PSPCL ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ 120 ਡੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 120 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ PSPCL ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ PSPCL ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ PDF ਨੋਟਸ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਖੁਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀ ਹੈ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀਏ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, PSPCL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ 0.50 ਆਊਟ ਆਫ 20। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹੀ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਿ 2-3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ PDF, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ PDF ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 to 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 20 to 25। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਆਊਟ ਆਫ 20 ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 15 11 ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 12 ਹਲੇ ਵਿਦਾਊਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਹਟਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਰ ਰਹੇ। GK ਇੱਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ GK ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ DPSPs ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੂੰ। 1 2 3 4 5 ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਚਲੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨਾਲ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਖੋਲਦੇ ਆਪਣਾ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੋਲ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਮਨਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਅ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਤੇ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੀ ਹੈ, 80 ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੀਪਲ ਇੱਕ ਓਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ resolve the constitute into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizen। secure ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਦੇਣੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਦੇਣੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਦੇਣੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਥਾਟ ਦੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਿਲੀਫ ਦੀ, ਫੇਥ ਦੀ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ, status and opportunity and to promote among them all। fraternity कहते ensuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। ठीक है जी, एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮੈਂਡ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਵਰਡ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਇਨ ਆਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿਸ 26th ਡੇ ਆਫ ਨਵੰਬਰ 1949, ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 26th ਡੇ ਆਫ ਨਵੰਬਰ 1949, 26 ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਹੇਅਰ ਬਾਏ ਅਡੋਪਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਗਿਵ ਆਰਸੈਲਫ ਦਿਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਡੋਪਟ ਤੇ ਇਨੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਅਡੋਪਟ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟ 4A ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ, 51A ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। 51A ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 11 ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ 51A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂ 51AK ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ A ਹੈ, ਮਤਲਬ 51A ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਰੂ small a to small k। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵਾ, PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ A ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ to respected ideals and institution that is national flag and anthem। ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਐਂਡ ਐਂਥਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਅਲਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲਸ ਤੋਂ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਜਾਂ uphold the sovereignty, unity and integrity of India ਨੂੰ। fourth one, to defend and counter and render national service when called upon।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ, ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਣਾ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ, ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਏ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਫॉर ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ PSPCL ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਕੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੇਕਸ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। 8th 1, ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। 9th, ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਐਂਡ 10th 1, to strive towards the excellence in all spheres of the individual. 11th, to provide the opportunity for the education by the parents and the guardian to his child or ward between the age of 6 to 14 years as the case may be. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਥਰੂ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ DPSPs ਨੂੰ। DPSPs ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? DPSPs ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? 36 ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 to 51 ਤੱਕ? ਤੇ DPSPs ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। इस DPSP जस्टिशिएबल्स? नो, DPSP जस्टिशिएबल्स नहीं है, सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स की जस्टिशिएबल है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ DPSPs ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 36 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ DPSPs? ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ। 37 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਇਟ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। 38 ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਕੀ ਹੈ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। 39 ਕੀ ਹੈ? ਸਰਟਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਅ ਪੋਲਿਸੀ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋਡ। 39 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਥਰੂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ। 40th ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 40th ਕੀ ਹੈ? ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ। 41 ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਪਬਲਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ। 43 ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ। 43A ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ। 43B ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਫॉर द ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। 45th provision of early childhood care and the education to the children below the age of 6 year। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 46 promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and the other weaker section। 47th की है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ठीक है। 48th की है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट की है 49th वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उस तो बाद केड़ा इंपॉर्टेंट है 51th आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द DPSPs अंडर आर्टिकल 51।
ठीक है। तुहानूं नाल मैं दसते इंपॉर्टेंट करे ने, तुहानूं कि बाय हार्ट की रिवाइज होने लर्न होने चाहिए ने। 45th आर्टिकल की है वेरी इंपॉर्टेंट, 51 आर्टिकल की है वेरी इंपॉर्टेंट एंड 44th ऑल्सो। ठीक है, किहड़े आर्टिकल इंपॉर्टेंट ने DPSPs दे विच? 44, 45 एंड 51 आर्टिकल की है बहुत इंपॉर्टेंट ने। उस तो इलावा कि तुहानूं कि एक बारी तुहाडे माइंड च होना चाहिए कि DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है जी, एक बारी देख लो अपने DPSPs नूं। ठीक है, PDF तुहानूं मिल जाएगी। अगर तुहानूं जल्दी रिवाइज करें तो तुसीं वीडियो नूं दोबारा देख लो, ਜਾਂ स्क्रीनशॉट लैके रख लो इहदी। ठीक है, नैक्सट आप डिस्कस करन जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे। कि डिस्कस करन जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इहदे विच जिन्ने भी मैं तुहानूं 5 टॉपिक्स करा रही है सारे की ने इंपॉर्टेंट ने। फंडामेंटल राइट्स किहदे विच आंदे ने? पहले फंडामेंटल राइट्स किहड़े पार्ट विच आंदे ने? पार्ट 3 दे विच। पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। 12 तो लैके 35 तक की है अपने फंडामेंटल राइट्स ने अपने तीजे पार्ट दे विच आंदे ने। फंडामेंटल राइट्स की ने? जस्टिसएबल्स ने। ठीक है, आपां की करने ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंपॉर्टेंट ਆਪਾਂ राइट्स ने 14 तो लैके 32 तक की है बाय हार्ट सानू की याद होने चाहिए ने। 14 तो लैके 32 तक उन्होंने की है डिवाइड किया गया है। जिवें आपां नूं पहला फंडामेंटल राइट दिता गया है राइट टू इक्वैलिटी। किहड़े आर्टिकल के अंदर आंदा है? आर्टिकल 14 to 18 के अंदर राइट टू इक्वैलिटी आर्टिकल 14 to 18 के अंदर। और सिटीजनस ते फॉरनर्स दोनों नूं दिता गया है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। इन्हां नूं कि आपां डिटेल विच टर्न बाय टर्न के डिस्कस करांगे, हुणे ही करांगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स दैट इज आर्टिकल 29 to 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ठीक है जी, हम जैसे कहोगे कि आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 की सी राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 उन्होंने की डिलीट कर दिता गया अपने फंडामेंटल राइट तो। उन्होंने की बना दिता गया लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिता गया। राइट टू प्रॉपर्टी नू राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी की है फंडामेंटल राइट की है हुण अपना नहीं रहा। हुण आप टर्न बाय टर्न की एक एक फंडामेंटल राइट नू की चंगी तरह डिस्कस करते हैं। पहला की है राइट टू इक्वैलिटी। किन्नवें आर्टिकल तो सी 14 to 18 की है राइट टू इक्वैलिटी, मतलब इक्वैलिटी देना। तुसी एक वर्ड तो समझ रहे हो, इक्वल, इक्वैलिटी देना। किस किस चीज़ों में इक्वैलिटी देना? लॉ के मामले दे विच डिस्क्रिमिनेशन ना होना, जॉब इंप्लॉयमेंट के मामले विच अनटचेबिलिटी नूं अबॉलिश करना, तो जिवें कि टाइटल्स होंदे हैं अपने प्रिंस, प्रिंसिस, किंग, क्वीन, एजुकेशन, प्रोफैशन ते मिलिटरी वाले की है असैप्ट किए गए हैं। तो प्रिंस ते प्रिंसिस जिवें लिता जाता वो चीज़ की अबॉलिश कर दी गई हुई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विच की है उस चीज़ नूं लीगल नहीं मन्निया जाता। ठीक है, एक स्टोरी की सारा समझ आ गया। इक्वैलिटी देना, इक्वल करना। हुण 14th आर्टिकल की कह रहा है? इक्वैलिटी बिफोर लॉ। लॉ के नज़रों विच की है सब की ने बराबर ने, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लॉ की नज़रों विच सब बराबर ने। 15th आर्टिकल की है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर के मामले। ठीक है, चाहे उन्होंने कह लो रिलीजन, रेस, सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, कोई भी की है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। 16th की इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जॉब इंप्लॉयमेंट दे विच। 17th की एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18th की प्रिंस, प्रिंसिस वर्गे टाइटल के अपने एबोलिश कर दिते गए हैं। सिर्फ जिद्दां कि अपने एजुकेशन प्रोफैशन दे विच टाइटल्स होंदे ने जां मिलिटरी विच वो की है असैप्टेबल है। ठीक है, नैक्सट की है 19th तो लैके अपने आर्टिकल 22 दैट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। हुण राइट टू फ्रीडम की है? फ्रीडम देना। किस किस चीज़ की फ्रीडम देना? हर सिटीजन नूं की है 19th आर्टिकल दे विच की है हर सिटीजन नूं की है फ्रीडम दी गई हुई है। किस किस चीज़ों की? 5 चीज़ों की की फ्रीडम मैंशन की गई है आर्टिकल 19 विच। 5 चीज़ों की की है फ्रीडम की है मैंशन की गई है आर्टिकल 19 दे विच। लैक्चर नूं शेयर कर दो जिहड़े बच्चों नूं नहीं पता लग्या कि लैक्चर आ चुका है। फटाफट पहले दा अज दे लैक्चर्स तो वधिया ले आओ, 100+ बच्चे कर दो। रिवीजन हो रही है पॉलिटी की, पूरी रिवीजन हो रही है पॉलिटी की। हाँ जी, एवरी सिटीजन हैज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन टू असैंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब आप पीसफुली खड़े हो सकते हैं बिना किसी हथियारों तो। सी टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। डी टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया
फ्रीली मूव करना थ्रू आउट द टैरेटरी ऑफ इंडिया। की याद रखना है, टैरेटरी ऑफ इंडिया दे विच, मतलब इंडिया के अंदर अंदर की असीं कि फ्रीली मूव कर सकते, सानू पासवर्ड वगैरह की लोड़ नहीं पैंदी। टू रिजाइड एंड सैटल इन एनी पार्ट ऑफ द टैरेटरी ऑफ इंडिया, आप रिजाइड कर सकते हैं किसी भी पार्ट से, मतलब आप प्रॉपर्टी लै सकते हैं ना इंडिया के किते भी, ठीक है, पता है ना वो चीज़। तो यह सब कि अंडर आ रही है आर्टिकल 19 के अंदर की है कि 5 चीज़ों को किया गया है। तो यह 19 आर्टिकल तो लैके बहुत सारे क्वेश्चनस मैं तुम्हें की करवाए सीगे, ठीक है। तेनों की याद रखना, मैं इतने लिख चुकी हुई हाँ कि बहुत की है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगे बढ़िए, 19 समझ लग गया। हम आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 की कन्वेंशन अगेंस्ट ऑफेंस, ठीक है, कन्वेंशन अगेंस्ट ऑफेंस। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये अंडर ही की है, राइट टू प्राइवेसी ही की है आर्टिकल 21 के अंडर ऐड किया जाता है। आर्टिकल 21 ने राइट टू एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। हम देख रहे हो है कि आर्टिकल 21 ये चीज़ मैंशन की है, मतलब किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया सी। किहड़ी अमेंडमेंट के थ्रू? 86th अमेंडमेंट 2002 दे विच की है इनू ऐड किया गया सी। ते होर किहड़ा आर्टिकल 86 दे विच ऐड किया गया सी, तुहानूं मैं दस्सिया सी। 51A दे विच की है जिहड़ा के ऑफ एजुकेशन वाला सी, के नहीं याद रखना, बस तुसीं सीधा कहना है 51A दे विच भी की है 86th अमेंडमेंट 2002 हुई सी। अगर बहुत डीप विच पुछ लैणगे, वैसे अज तक पूछा नहीं है, बहुत डीप विच पुछ लैणगे तो तुसीं रखना 51A के, दैट इज़ जिहड़ी 11th फंडामेंटल अपनी ड्यूटी सी वो भी की सी 86th अमेंडमेंट 2002 दे विच उहनूं ऐड किया गया सी, ठीक है। तो जिहड़ा अपना DPSP आर्टिकल 45 भी की सी, वो भी की सी एजुकेशन नाल रिलेटेड आर्टिकल 21। उस तो बाद किहड़ा आर्टिकल से अपना 51A एंड आर्टिकल 45। दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। ए की है DPSP, ए की है फंडामेंटल ड्यूटी। ए तीनों आर्टिकल्स की है एजुकेशन नाल रिलेटेड है। फर्क की है, आर्टिकल 45 दे विच जिहड़ी एज है वो सिर्फ 6 ईयर्स तक मैंशन है, तो यह दोनों आर्टिकल्स विच एज की है 6 to 14 ईयर्स की है मैंशनड है। तीनों ऑप्शंस करके दे देंगे, पूछ लेंगे ये करैक्ट किहड़ा है, इनकरैक्ट किहड़ा है, तो फर्क की दिखाएंगे सिर्फ एज दे विच, ठीक है। लिख देंगे आर्टिकल 21 ने इज़ अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडिंग द एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 ईयर्स। उत्थे की हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एज की है 6 to 14 ईयर्स मैंशनड हैगी है। समझ लग गया, क्लीयर हो गया? डाउट होएगा अगर हजे भी किसी को कमेंट बॉक्स में कर देना, नैक्सट लैक्चर डाउट में मैं क्लीयर करवा दाँगी। आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है। एक बार चलो दोबारा ध्यान नाल सुन लो। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 51A ज़्यादा डीपी हो गया था के, उस तो बाद 45, ठीक है। दिस इज़ अवर फंडामेंटल राइट, दिस इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटी। 45 की है DPSP। ए दोनों च एज की है 6 to 14, ठीक है। तो एदे विच एज की है 6 ईयर्स, अप टू 6 ईयर्स, यह चीज़ रखनी। तो यह दोनों की किहड़ी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड होए सी? 86th अमेंडमेंट 2002 के अंडर की है ऐड किए गए सी। समझ लग गई इन्नी चीज़? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लॉयट होने तो प्रोटेक्ट करना, ठीक है। किसी चीज़ को की है एक्सप्लॉयट होने तो की है प्रोटेक्ट करना। एक्सप्लॉयट होने तो प्रोटेक्ट विच किहड़े आर्टिकल 23 ते 24 आ जाएंगे। आर्टिकल 23 की कहता है प्रोबेशन ऑन द ह्यूमन टैरिफिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन टैरिफिक नूं प्रोहिबिट करना तो फोर्स्ड लेबर नूं की है प्रोहिबिट करना, मतलब अलाउ नहीं हैगी ह्यूमन टैरिफिंग ते फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 की है बैन ऑन द चाइल्ड लेबर दैट इज़ 14 ईयर एंड इन द डेंजरस वर्क दैट इज़ 18 ईयर्स, ठीक है। बैन ऑन, अगर डेंजरस वर्क है, कोई डेंजरस फैक्ट्री है, उहदे ते 18 साल तक कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता। अगर कि किसी भी फैक्ट्री में 14 साल तो घट का बच्चा की काम नहीं कर सकता, ठीक है। 14 साल तो बाद बच्चे काम कर सकते हैं, पर डेंजरस वर्क दे विच नहीं इन्वॉल्व हो सकते, ठीक है जी। क्लीयर हो रहा है तो फटाफट सारे लिख दो क्लीयर हो रहा है, ठीक है। हाले मैं इन्नी, अगर तुम बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल में सुनना चाहते हो लैक्चरस नूं तो तुसीं पिछले जीके के लैक्चरस देख लो। जीके 4th लैक्चर दे विच ते 5th लैक्चर विच मैनूं करवाया सी,
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, मतलब कि एक तो सी राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 to 22 सी। अगला क्या आंदा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ आर्टिकल 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 तक आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ मतलब रिलीजन ਦੇ रिलेटेड फ्रीडम देना, ठीक है, अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। रिलीजन ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीडम देना किस किस चीज़ ਦੀ फ्रीडम होना, किस तरह ਦੀ चूज़ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ रिलीजन ਨੂੰ 25th आर्टिकल ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। मैनेज ਕਰਨ ਦੀ रिलीजियस अफेयर ਨੂੰ आर्टिकल 26। 27 की कहते हैं फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 28 की कहते हैं फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। नेक्स्ट के कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब राइट देना किस चीज़ नाल रिलेटेड, कल्चर ते एजुकेशनल दे राइट्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ आर्टिकल आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਤੇ 30। 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਚਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕॉन्स्टिट्यूशनल ਰੈਮੇਡੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ कॉन्स्टिट्यूशनल ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता अपना आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी किया गया हुआ है। किहदे द्वारा किया गया हुआ है बाय डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा की है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया हुआ है, ठीक है जी। आर्टिकल 32 की कहता है अगर साडा कोई भी फंडामेंटल राइट, अगर साडा कोई भी फंडामेंटल राइट की है वायलेट किया जा रहा है तो असी डायरैक्टली की है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, ठीक है। सीधा आप ज़्यादातर की है किसी भी केस में लैके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले सानू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट एंड दैन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन की है आपा की है अगर साडा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरैक्टली सुप्रीम कोर्ट की है जा सकते हैं अपने राइट किसी भी राइट नू लैके। इसी करके की है आर्टिकल 32 नू हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया सी डॉक्टर BR अंबेडकर जी द्वारा, ठीक है। ਇਹਦੇ अंदर की है सुप्रीम कोर्ट की है रिट इशूज़ कर सकता है। किनिया रिट इशू करता है 5 रिट इशू करता है। अज मैं रिट्स नू डिटेल विच बिल्कुल नहीं करवावांगी क्योंकि मैं पिछले लैक्चर करा चुकी हूँ, सिर्फ तुहाडा एक रिवीजन लैक्चर चल रहा है। रिवीजन की इसी तरह होएगी, अगर तुहानू बहुत डिटेल विच रिवीजन करनी है तो तुसीं मैनू कमेंट बॉक्स विच कमेंट करोगे, पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ है तुहानू ਤੁਹਾਡਾ रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। फस्ट रिवीजन क्लास है, ਤੁਹਾਡੇ रिस्पॉन्स ਨੂੰ देखते हुए मैनू किन्नी डिटेल विच क्लासेस ਨੂੰ रिवाइज करवाना है वो मैं डिसाइड करांगी। उस तो बाद 5 रिट्स ने, पहली हैबस कॉर्पस, सैकेंड मोमेंडस, थर्ड प्रोबिशन, फोर्थ सिटेरियो एंड फिफ्थ की कोयो वेरेंटो, ठीक है। हैबस कॉर्पस की है टू हैव अ बॉडी, इंपॉर्टेंट हैबस कॉर्पस की है टू हैव अ बॉडी। मोमेंडस की है वी कमांड, असी की कमांड कर रहे हैं, यह सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स लिए हैगी है। उस तो बाद प्रोबिशन की है टू फॉरबिड करना, प्रोहिबिट मतलब टू फॉरबिड करना। इन्हां दे तरीके भी मैं दसे सीगे ते डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल कराए सी। अगर मैं हुण डिटेल करा दांगी फिर इन्हूं रिवीजन नहीं मन्निया जाएगा, इन्हूं प्रॉपर एक लैक्चर आपां की है रिवाइज कर रहे हैं। सिटेरियो की है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इनफॉर्म्ड करना, ठीक है। जेड़ी की है अपनी थर्ड ते फोर्थ दैट इज प्रोबिशन एंड सिटेरियो रिट है, यह की है कोर्ट टू कोर्ट इशू होंदी है, मतलब कोर्ट इशू होंदी है। हाई कोर्ट की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूं कहंदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स नूं की है ऑर्डर दिंदा हुआ है। फिफ्थ की है क्यों वरिंचो, बाय वॉट अथॉरिटी, केड़ी अथॉरिटी दे नाल इनक्वायर करना भाई केड़ी अथॉरिटी दे नाल तो इस जगह ते बैठा हुआ है, दैट इज क्यों वरिंटो, ठीक है जी। ऐसे अपने फंडामेंटल राइट्स आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर हजे भी किसी को डाउट है इन्हें टॉपिक्स नूं लैके तुसीं मैनूं की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दसोगे। हुण आपां डिस्कस करन जा रहे हैं शेड्यूल्स आपां पहली बार डिस्कस करन जा रहे हैं, इसलिए कि मैं इन्हां नूं डिटेल दे विच करवावांगी, ठीक है जी। टोटल किन्ने ने 12 शेड्यूल्स ने हैगे ने, ठीक है। हुण आपां क्या डिटेल विच डिस्कस करन जा रहे हैं। हुण आपां अपने वधदे अपने फस्ट शेड्यूल दे वाल। पहला शेड्यूल की कहंदा है, पहला शेड्यूल सानूं 2 चीज़ां दसदा है कि है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन,
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ देयर एक्सटेंट। ठीक है जी, सॉरी, ठीक है, एंड देयर एक्सटेंट। उस तो बाद की है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, मतलब पहले शेड्यूल की है ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੁਰਿडिक्शन ਹੈ। मतलब ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁਰਿडिक्शन मतलब ਇਹਦਾ ਕੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ, मतलब ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ यूटी ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਡਨ ਕਰ ਦੋ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ प्रोविजन रिलेटिंग टू द एम्लोमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। मतलब सैलरीज नू लैके की दसदा सैलरीज के बारे। एक सिंपल है सैलरीज, सैलरीज किहड़े शेड्यूल के अंदर आ रही ने, किन्नियां सैलरीज, किहड़ी अलाउंस, किहड़े उन्हां नू बेनिफिट्स, सब किहदे अंदर आंदे सैकेंड शेड्यूल। किहदे सैलरीज नू लैके प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। हुण इत्थे एक चीज़ पता लग रही है, लोक सभा विच की होंदे ने स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर, राज्य सभा विच की होंदे ने चेयरमैन ते डिप्टी चेयरमैन। अपने प्रेजेंट तुसीं कमेंट बॉक्स विच कमेंट करना प्रेजेंट स्पीकर दा नाम ते किन्नवी अपनी लोक सभा चल रही है, प्रेजेंट स्पीकर दा नाम ते किन्नवी अपनी लोक सभा चल रही है। ठीक है, अगे फिफ्थ की कहते स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबलीज इन द स्टेट। किहदे लैजिस्लेटिव असैंबलीज इन द स्टेट। स्टेट्स विच की होंदियां ने लैजिस्लेटिव असैंबलीज होंदियां ने ते लैजिस्लेटिव काउंसिल होंदे ने। दो चीज़ां होंदियां ने, लैजिस्लेटिव काउंसिल ते लैजिस्लेटिव असैंबली। जजिज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजिज ऑफ द हाई कोर्ट। लास्ट की है कंपोर्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, दैट इज कैग। ठीक है, कि सैकेंड शेड्यूल के अंदर 9 जानिया दी 9 परसनस की है सैलरीज के बारे, उन्होंने किहड़े बेनीफिट्स, किहड़ी अलाउंस मिलनी चाहिए है बारे सैकेंड शेड्यूल विच दस्सिया गया है। तुसीं लैजिस्लेटिव अपने पंजाब दी लैजिस्लेटिव असैंबली दे स्पीकर का नाम मैनूं दसना है। एक ही दसना है लोक सभा दे स्पीकर का नाम ते किन्नवी लोक सभा चल रही है। एक तुसीं मैनूं पंजाब दे लैजिस्लेटिव असैंबली दे स्पीकर का नाम दसना है। ठीक है, जिहड़े बच्चे सीरीयस ने इस चीज़ ने लैके ते जिहड़े चाहते हैं उन्होंने आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 19 मार्क्स तो मैक्सीमम आन ना जीके दे विच वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया करो। तुसीं खुद नोटिस करोगे कि तुहानूं एग्जाम में बहुत फायदा होएगा। थर्ड शेड्यूल किनू लैके ओथ्स नूं लैके, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, सैकेंड किनू सीगा सैलरीज नूं लैके, थर्ड किनू है ओथ नूं लैके, फस्ट किनू सी स्टेट्स ते यूनियन टैरेटरीज दी एक्सटेंट नूं लैके, ज्यूरिडिक्शन नूं लैके। ठीक है, किहदी ओथ, यूनियन मिनिस्टर्स दी ओथ नूं लैके, कैंडीडेट्स फॉर इलैक्शन टू द पार्लियामेंट, मैंबरस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपीज जिहड़े लोक सभा विच हुंदे, जजिज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग ऑडिटर कंपोर्टर एंड ऑडिटर जनरल। प्रेजेंट कैग का नाम दसना वा कमेंट बॉक्स विच नाले। स्टेट मिनिस्टर्स नूं लैके। सैवंथ द कैंडीडेट फॉर इलैक्शन टू द स्टेट लैजिस्लेचर, मैंबरस ऑफ द स्टेट लैजिस्लेचर, द जजिज ऑफ द हाई कोर्ट। यह सब दी ओथ नूं लैके। ठीक है, कौन किन्नू ओथ दवांदा है आप ये भी चीज़ की है करांगे नैक्सट लैक्चर्स विच जाके। फोर्थ शेड्यूल की कह रहे हैं अपना एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्य सभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टैरेटरीज। राज्य सभा दियां किन्नियां सीटां किन्नियां स्टेट्स ते यूनियन टैरेटरीज नूं आउणगियां। मतलब कि जिवें 2 सीटां की है, 2 सीटां की एली स्टेट नूं चल जाएगी, 3 सीटां की है ए वाली स्टेट नूं चल जाएगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अपनी राज्य सभा दे विच पंजाब दियां किन्नियां सीटां ने, लोक सभा विच 13 ने ते राज्य सभा च किन्नियां ने 7। जिवें 7 सीटां की है राज्य सभा विच, जिहड़ी एलोकेट होईयां ने सीट्स ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, फोर्थ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੰਡਰ, ਚੌਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5th ਸ਼ਡਿਊਲ। ਹੁਣ 6th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
4 स्पैशल एरियाज़ की गल की गई, ट्राइबल एरियाज़ की 4 स्पैशल किहड़े असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5th ते 6th शेड्यूल दे विच की यही डिफरेंस है। 5th शेड्यूल विच किसी भी स्टेट्स की ट्राइबल एरियाज़ की स्पैशल मैंशन नहीं है, पर 6th विच की है असम, मेघालय, त्रिपुरा ते मिजोरम नूं की है स्पैशली की है एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है। ठीक है। 7th शेड्यूल की है कब है अपनी लिस्ट नूं लैके, इनू पढ़ लेना एक बार। 7th शेड्यूल बस इदा तुसीं समझ लो मेरे तो। 7th शेड्यूल की है लिस्ट है, तीन लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 की है यूनियन लिस्ट, सैकेंड की है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड की है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कित्थों बोरो की हुई है, आस्ट्रेलिया तो बोरो की हुई है। ठीक है। ये क्या डिफरेंट मैटर्स होंगे ने। कॉन्करेंट लिस्ट में किहड़े मैटर आते हैं जोड़े अपने यूनियन तो स्टेट लिस्ट में मैटर्स नहीं आते, वो सब मैटर्स की अपने कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आ जाते हैं। यूनियन लिस्ट में प्रेजेंटली किन्ने मैटर्स ने 100 ने। पहले ओरिजिनल जो बनाई गई इस शेड्यूल में किन्ने सी 97। स्टेट विच किन्ने ने 61 एंड कॉन्करेंट विच किन्ने ने 52 सब्जेक्ट्स इस टाइम के अपने मैंशनड ने। ठीक है। नैक्सट 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल दी किस नाल रिलेटिड है, लैंग्वेजेस नाल रिलेटिड है। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी अपने को 8 शेड्यूल सी, पर अज अपने को प्रेजेंटली किन्ने ने 12 शेड्यूल ने। ठीक है जी। 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस का दसदा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनया से उदों किसी 14 लैंग्वेजेस सी, पर प्रेजेंटली ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनियां दित्तियां गई ने 22 लैंग्वेजेस दित्तियां गई ने। उहदे विचों की है जी 21st 3 अमेंडमेंट्स हुई। 21st अमेंडमेंट नाल साडे कोल सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई। 71st अमेंडमेंट नाल कोंकणी, मणिपुरी ते नेपाली नूं ऐड किया गया। तो 92nd अमेंडमेंट नाल की है BDMS नूं ऐड किया गया। हुण BDMS की है बोडो, डोंगरी, मिथाली ते संथाली लैंग्वेज नूं की है ऐड किया गया सी। ठीक है। ये की तीनों अमेंडमेंट्स की है 8th शेड्यूल दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगियां ने। नैक्सट शेड्यूल की 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल की कहता है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 9th शेड्यूल ना कि किनवीं अमेंडमेंट नाल ऐड किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 नाल की है 9th शेड्यूल नूं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन विच ऐड किया गया सी। किस चीज़ नूं लैके ने, लैंड रिफॉर्म्स नूं लैके। किस चीज़ नूं लैके, लैंड रिफॉर्म्स। मतलब जो लैंड का मैटर की है वो स्टेट के अंदर आएगा। पहले की होंदा सी यूनियन के अंदर आता सी, हुण लैंड का मैटर की है स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है। डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है। वो किहदे अंडर आएगा, लैंड के अंडर आएगा। पहले यह चीज़ की सी रिव्यू लिए वैलिड नहीं सी, हुण कि ये आप जुडिशियल रिव्यू की है ये अपनी सरकार कर सकती है किसी भी लैंड के मैटर नूं लैके। अयोध्या केस की है लैंड के मैटर दे ना। ठीक है। 10th की है, 10th की है एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th की है एंटी डिफेक्शन लॉ केड़ी अमेंडमेंट नाल ऐड किया गया, 52nd अमेंडमेंट 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता की है अगर कोई पार्टी की है, कोई पार्टी का बंदा की है अपनी पार्टी नूं इलैक्शनस तो बाद बदलता है, उन्होंने की डिसकुआलीफाई कर दिता जाएगा। कोई भी पार्टी का बंदा की है इलैक्शनस होने तो बाद की है अपनी पार्टी नूं नहीं बदल सकता, क्योंकि कई बार की है जिमें 2 बंदे है। ठीक है। आप लोग की करते सिर्फ बंदे नूं देख के वोट पाते, पार्टी नूं देख के वोट पाते हैं। ठीक है। कुछ जाने पार्टी नूं देख के लोग वोट पाते हैं, कुछ जो उस पार्टी का एक कैंडीडेट है कैंडीडेट नूं देख के वोट पाते हैं। अगर की वो कैंडीडेट की है वो बदल दे, वो पार्टी का नाम बदल गया, तो ਜਿਹੜੇ लोगों ने सिर्फ उन्हें पार्टी नूं देख के वोट पाया उन्हां नाल तां नाइंसाफी होगी ना। इसीलिए की है कि कोई भी बंदा इलैक्शनस तो बाद अपनी पार्टी नूं की है बदल नहीं सकता। पर ਇਹਦੇ ते की एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर कि उस पार्टी के 2/3 परसनस अपनी पार्टी नूं बदलना चाहते हैं ਤਾਂ कि यह पॉसीबल हो सकता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की अपना फेल हो जाता है। उत्थे की एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड नहीं होंदा तो पार्टी बदली जा सकती है। अदरवाइज अगर एक पर्टिकुलर बंदा पार्टी बदलना चाहता है आफ्टर इलैक्शंस वो चीज़ पॉसीबल नहीं है, वो चीज़ की है इलीगल है। समझ लग के, क्योंकि 10th शेड्यूल की वेरी इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद 11th एंड 12th शेड्यूल। 11th एंड 12th की है 11th शेड्यूल की है 73rd अमेंडमेंट नाल इंक्लूड किया गया। 12th शेड्यूल किहदे नाल किया गया 74th अमेंडमेंट दे नाल। दोनों अमेंडमेंट्स कदों हुई 1992 दे विच। 11th शेड्यूल की है पंचायत नाल रिलेटिड, तो 12th शेड्यूल की है म्यूनिसिपैलिटीज़ नाल रिलेटिड। याद रखना 11th पंचायत नाल, 12th म्यूनिसिपैलिटीज़ नाल। थ्री टायर सिस्टम बनाया सी। किहड़े 3 टायर सी,
ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 11th ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ? 29 ਮੈਟਰਸ ਨੇ। 12th ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 18 ਮੈਟਰਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਵੀ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ 40 to 45 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 5 ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ।